Good morning, student. Today we begin with chapter 1 of book 2 in Political Science Challenges of Nation Building. This chapter gives us a glimpse into the immediate issues India faced after independence in 1947. India was free, but now came the real test, that is, building the nation. Then, what does nation building means? Nation building means uniting the country politically, socially, and economically. But India was facing several challenges like partition of India and Pakistan, princely states, and establishing democracy. And the chapter mentioned three major challenges. Challenges were that India faced after the independence, that is, maintaining unity and integrity of India. After partition, there was violence and communal tensions. The country needed unity. हम लोगों ने सबने गदर मूवी देखी है. जो गदर मूवी में फर्स्ट सीन आता है ट्रेन का, देयर वाज टू मच वायलेंस, एक दूसरे को मारते रहते हैं. तो ये रियल में हैपनिंग हुई थी जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशंस हुआ था. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. Almost over 500 princely states had to be merged into the Indian Union. ज़्यादातर princely states क्या चाहते थे, दैट इज़ दे वांट टू जॉइन द पाकिस्तान, या वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते थे. तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया हमारे जो पुराने लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट्स को विद इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग वो रीड करेंगे. एंड द थर्ड चैलेंज इज एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी. तो इंडिया हैड टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम with elections, with a constitution, when with a equal right. With this, the chapter help us understand how leaders like Nehru, Patel, and other worked to unite India, and it also tells us how the choices made in the early years shaped the futures of our nation. So in this chapter, we will study how India handled the biggest challenges at the time of its birth as an independent nation. So, shall we start the chapter? Okay, चलिए let's move to the first topic of this chapter, challenges for the new nation. तो after India gained independence in 1947, 15 August 1947, it was not just freedom from British rule. सिर्फ ब्रिटिशर से हमारे लिए ये आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक हमारे सामने जो स्टार्टिंग थी वो थी एक न्यू नेशन के डेवलप्ड की, कि हम कैसे एक नए नेशन को फॉर्म करें, एक नए नेशन को हम लोग बनाएं. बट जो ये कह सकते हैं, जो हमारे लिए, हमारे लीडर्स के लिए अब जो ये पाथ था, है ना, जो ये रोड बनानी थी, दैट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस. अब India had to prove itself as a united, democratic and a stable country. भाई हम लोगों को पता था कि अब क्या है, इंडिया को एक साथ होकर डेमोक्रेटिक रूप से स्टेबिलिटी के साथ उसको स्टेबल करना था, उसको स्टैब्लिश करना था. अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो देयर इज अ फर्स्ट challenges India faced on, it was keeping the country united. India was extremely diverse, we know that, with the people speaking different languages, following different religions, and belonging to various regions. Partition had already caused communal violence and fear. भाई जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो देयर वाज टू मच वायलेंस स्प्रेड, communal violence spread. So maintaining peace and unity was essential on that time. Okay. Then second challenges was the integrations of princely states. What is princely states? प्रिंसली स्टेट्स क्या होती थी कि जो हमारे राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, उनके रजवाड़ों को, है ना, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता, राजाओं के स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था. देन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, almost 500 princely states were not directly under the British rule.
कुछ इन लोगों के असाइनमेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ करते थे, उसके अकॉर्डिंग क्या थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर वो नहीं आते थे. तो दीज स्टेट्स हैड द ऑप्शन टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. इफ दे हैड ऑल एक्टेड ऑन देयर ओन, अगर वो खुद से काम करते, देन इंडिया वुड हैव बीन अ डिवाइडेड लैंड. भाई अब प्रिंसली स्टेट्स तो हमारे पास इतने सारे थे, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो 500 प्रिंसली स्टेट्स उसमें से बने हुए थे. ठीक है, अब 500 प्रिंसली स्टेट्स अगर सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे तो इमेजिन कि हमारा जो इंडिया का मैप है वो किस तरह का हो जाता. ठीक, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था हमारे सामने, हमारे लीडर्स के सामने, कि हम इन प्रिंसली स्टेट्स को अलग होने से बचाएं और अपने इंडिया के साथ ही मर्ज कर सकें. एंड द थर्ड मेजर चैलेंजेस वाज स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी. तो इंडिया चूज टू बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर एवरी एडल्ट वुड हैव द राइट टू वोट. दिस वाज नॉट इजी इन अ कंट्री विद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे गरीबी थी, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ पे. ठीक है, और एक अगर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो हमारे लिए ये भी था कि हम हर एक एडल्ट पर्सन को राइट टू वोट प्रोवाइड कराएं. तो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस and the Jawaharlal Nehru was the first prime minister of our free India. Okay, on that night, on that midnight, he addressed a special sessions of Constituent Assembly. Okay, उन्होंने एक स्पीच दी थी वहाँ पे जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया था. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 1 मार्क्स कि जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच थी वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू वो दी गई थी. तो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी. सब कुछ इतना ईजी नहीं था जितना कि दिखाई दे रहा था. इंडिपेंडेंट तो हम लोगों को मिल गई थी, बट हम लोग एक और अलग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में फंसते चले गए थे. अलग से सिचुएशन हमारे सामने बनती चली गई, अलग से परिस्थितियाँ हमारे सामने आती चली गई थी. ठीक है, शायद कोई और अदर कंट्री जो थी वो इस तरह की सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाती जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपने एफर्ट दिखाए और इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद, इतने सारे चैलेंजेस के बाद उन्होंने हमारी कंट्री को एक यूनाइट किया, यूनिटी में बांध दिया और हमारे एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड किया. ओके, तो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में जो कवर करेंगे वो ब्रॉडली हम चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से चैलेंजेस को हम लोगों ने फेस किया था. ओके, so goodbye.